So a very good morning to all the viewers who are watching my video and the present. So in this video I'll be discussing the first most chapter, or the chapter number 1 from Robert Boylston. So this is helpful to you all in cracking the most prestigious, I cannot say that, most technical examination, that is GATE examination. So it might be helpful to all the students who are watching my video. So I'll be explaining each and everything in English so that you will be having an understanding about what it is or how it is going on, and also I will be in the middle I will be also explaining it in Hindi, so that the students who are belonging to Hindi might be understanding about what I am saying. So let me start the session. The session will be of 1 hour session, and you should have to know the proper time management of how you can manage. So because as you can see here, the introduction part and the sufficient categorization of the part of chapter 1, which is semiconductor diode, which has been introduced in the point wise. So introduction, then after we will be learning about semiconductor, germanium, silicon, as well as arsenic, germanium, arsenic, sorry for that. Then after we will be learning about what is covalent bond, how it is usually placed, and how it placed in the bonding of different electronic gadgets, and how it is been manufactured. Then after energy level, we will be learning about different energy level. Okay, we will be learning about these energy levels, how these energy levels plays an important role in the bonding between different atomic structures. Then after n-type and p-type material, usually what is n-type and what is p-type material, how it is been useful. Then after semiconductor diodes, okay, then after semiconductor diodes we'll be learning about that, what are the different semiconductor diodes. Then after we will be learning about ideal versus practical, how ideal and how practical differs, because as you are from belonging to electronic students or electronic engineering students, then you should have to know that ideal may not be accurately perfect with the practical. That's the thing you should have to know. So अगर हम देखें आइडियल का एक ट्रांजिस्टर ले और प्रैक्टिकल में वो ट्रांजिस्टर का चेक कर दिए, तो फिर प्रैक्टिकल में वो चाहे ट्रांजिस्टर ले तो फिर वो डिफर होता कैसे, मीन्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ numbers or numerals it differs. So this is how the ideal versus practical differs. So वो भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, और इसी लेक्चर में वो सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा. उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल, how the resistance level differs from one component to another component. As you are belonging to electronic student, then you should have to know this because it plays a very important role with the SI units too. So अगर देखें रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रांजिस्टर का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, वो सारा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. लेकिन इस वीडियो में मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि ये बेसिक सेमीकंडक्टर डायोड है जो कि पहला नंबर चैप्टर 1 से लिया गया है. So उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, डिफ्यूजन एंड कैपेसिटेंस, रिवर्स रिकवरी टाइम, उसके बाद डायोड स्पेसिफिकेशन शीट. सो वो सारा हम इस वीडियो में ही कवर कर देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है. तो फिर जुड़े रहिए, ठीक है. तो फिर अब अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज जुड़े रहिए, ठीक है. सो पहला नंबर चैप्टर जो कि है सेमीकंडक्टर डायोड्स. सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड्स. सो यूजुअली व्हाट इज सेमीकंडक्टर, which is not a conductor nor a insulator, which is between the region, we can say that. So अगर ये सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ये इंसुलेटर भी नहीं है जो कि इंसुलेटर मीन्स इंसुलेटिंग नहीं करता. अगर आप जान सकते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, you even know that what is meant by conductor and what is meant by insulator. So which conduct electricity is called conductor and which do not conduct electricity is called insulator. So then why semiconductor? जैसे कि हम जानते हैं जो कि कंडक्ट करता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, या फिर जो कि कंडक्ट नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं. तो फिर सेमीकंडक्टर क्यों, इसको डायोड के माध्यम से क्यों हम जान सकते हैं. Why we usually know about this as in form of diodes. So usually semiconductor is that region where transistor used to work. Okay, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत ही ज्यादा करंट नहीं चाहिए, बहुत ही कम करंट नहीं चाहिए, उनको मीडियम करंट चाहिए अपना प्रोसेस करने के लिए,
ठीक है। तो उसी प्रकार हम सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन किए और सेमीकंडक्टर कैसे इन्वेंशन किए वो सारा हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी दिलवाया हूं। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का पता चल गया सेमीकंडक्टर्स क्या है, तो फिर हम पीरियोडिक टेबल देखें। सो पीरियोडिक टेबल में क्या दिखा गया है, अगर आप पीरियोडिक टेबल जो भी 12th क्लास केमिस्ट्री में आप पढ़े हो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एटम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। वो क्या है, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है। उस एटॉमिक पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिक टेबल में हमको क्या मिलता है, एक है एटॉमिक नंबर, एक है एटॉमिक साइज और एटॉमिक वेट भी कहते हैं। सो AW एंड AS। सो एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक बॉन्डिंग जो भी होते हैं वो सारा इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो फिर अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है। तो यू शुड हैव टू नो व्हाई इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट। Usually 3 materials have been available here. One is silicon, germanium and gallium arsenide. So silicon, you all know that the valency of silicon is 4. So usually you know, I do not want to explain you much more about this. You know how bonding usually plays. So how valency band is been placed to 8 atomic number, sp1, sp2, 1sp, 1sp. You know that how Bohr's atomic theory, you know every atomic structure of different atoms. So no need to explain you about in detail about SI, how it forms. So okay, then the atomic number of this, now how electrons are been placed here, ठीक है। वो सारा हम वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 12th का बेसिक है, 12th एंड 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो में खाली मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एक सिलिकॉन, जर्मानियम एंड गैलियम आर्सेनाइड आर द 3 semiconductor devices or semiconductor materials. Then after we will be discussing about electron hole theory, then p-n junction material, how it has been enabled, how it has been understood, developing a clear understanding of the basic operation of characteristics of diode, no bias, forward bias and reverse bias. So biasing, how it has been placed, एक स्पेसिफाइड करंट को कैसे हम पीएन जंक्शन में देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को कैसे मूव होगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद AC, DC एंड एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ डायोड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स अगर AC में कैसे चल रहा है, DC में कैसे चल रहा है या फिर मिनिमम रेजिस्टेंस में कैसे चल रहा है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट वेदर इट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल, जो भी मैं पहले ही इसमें बोल चुका था कि आइडियल एंड वर्सेस प्रैक्टिकल जो भी हम हैं, मीन्स आइडियल का न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल का न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्या होता है और कैसे वो डिफर होता है अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स का, तो फिर आपको समझ आ गया, मीन्स समझ पाओगे कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर पीसीबी, अगर पीसीबी आप अगर सेमेस्टर 1 में हो या फिर सेमेस्टर 2 में हो, पीसीबी डिजाइन अगर आपको सिखाएंगे तो फिर वो भी बहुत अच्छा है कि पीसीबी डिजाइन अब जब आप सीखोगे डिफरेंट स्टिमुलेशन में तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि आइडियल उसमें क्या होता है, आइडियल रिजल्ट देता है, लेकिन जब आप उसी को ही प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर आपका डिफर होता है, ठीक है, थोड़ा कुछ। तो उसको ही हम कैसे ग्राफ में डिस्प्ले करेंगे वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बिकम फेमिलियर विद द ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी या फिर जेनर डायोड जो कि ठीक है। जेनर डायोड का मैं जेनर डायोड का कुछ ग्राफ है जो कि 0.7 से डिफर होता है ना, ठीक है। सो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जेनर डायोड कैसे डिफर होता है, जेनर डायोड क्यों हम यूज करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, कहाँ पे यूज होता है वो भी हम पढ़ेंगे। सो उससे पहले
मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो भी दिलवाया था आपको समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में क्या है और इस वीडियो में मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में क्या है? सो यूजुअली इंट्रोडक्शन में यही दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सेमीकंडक्टर जो भी होता है डिवाइस, वो इसमें क्या होता है, इसमें मीन्स हाउ इट इज यूजफुल, how it is useful in the form of different system integration, different development processes, how it is been useful. So first is system are incredible smaller, current speed of operation are truly remarkable, and new gadgets surface very every day, leaving us to wonder where technology is taking us. Usually मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मोबाइल्स, आप जान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि मोबाइल है, मोबाइल में कितना ज्यादा ट्रांजिस्टर हुआ है, कितना ज्यादा आईसीस का इन्वेंशन हुआ है, कितना ज्यादा आईसीस का इम्प्लीमेंटेशन उसमें हुआ है, जो कि अगर आप मोबाइल खोलोगे तो फिर आपको दिखाई देगा एक पीसीबी। उस पीसीबी में क्या होता है, इतना ज्यादा होकर इतना बड़ा आईसीस लगा होता है। सो उस आईसी को क्या बोलते हैं? उस आईसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेट का मतलब है सभी को मिला देना को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़े हो, इंटीग्रेशन आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले में इंटीग्रेशन का मतलब है कि इंटीग्रेट एवरी सिंगल कंपोनेंट। सो इंटीग्रेशन मीन्स जस्ट यू हैव टू कंप्रेस ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन वन स्पेसिफाइड प्लेस, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, सो दैट इंटीग्रेशन हाउ इट इज बीन यूजफुल। इन्वेंशन ऑफ न्यू सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल फोन, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, एक मोबाइल फोन है, दिस इज वन मोबाइल फोन। सो व्हेन आई टेक दिस मोबाइल फोन, यू विल बी हैविंग different strategies, means different IC designs. So whenever I on this mobile, you might be having a visualization here that, so if अगर आपको इधर चार्जिंग का पॉइंट दिखाया होगा तो फिर इसमें चार्जिंग दिखा गया है 18%. So 18% is the charging here. So 18% चार्जिंग कहाँ से हुआ है? करंट से ही हुआ है ना. So usually whenever electronic gadgets, एक मोबाइल है, जब ये चार्ज में बसता है 2-3 घंटे में चार्ज हो जाता है. अगर नया मोबाइल है तो फिर वो चार्ज कितने दिन या फिर एक दिन तक वो चलता है चार्ज. सो इतना ज्यादा कम करंट लेकर इतना ज्यादा टाइम वो जब यूटिलिटी होता है तो फिर इसमें किसका बड़ा योगदान रहा? इसमें ट्रांजिस्टर्स का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उतना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी वो करता है, इतना ज्यादा कम पावर कंजप्ट करके इतना ज्यादा प्रोसेसिंग करता है. तो इसीलिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स. सो इस चैप्टर में या फिर इस बुक में हेडिंग दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स. सो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा कि मैं इस बुक जो भी आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उस एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है. आप इधर देख सकते हैं कि मैं इस बुक से प्रिपेयर करके ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह हो सके. तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग एवरीथिंग इन डिटेल एंड आई एम आल्सो पॉइंटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक. So the second most topic is relative easy of grasp and information and have application for years to come. So usually जब न्यू इनोवेशन चल रहा था, एक बड़ा सा कंप्यूटर जो कि 1 मेगाबाइट का स्टोरेज कैपेबिलिटी अब इस छोटे से या फिर छोटे से चिप में आ सकता है. तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी न्यू इन्वेंशन से बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है, ठीक है. द मिनिएचर हैज अकर्ड इन रिसेंट ईयर, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस है. जैसे कि हम जानते हैं, जो कि मैं आईसी के बारे में बोल चुका था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट वाज डेवलप्ड बाय जैक किल्बे व्हाइल द वर्किंग एट टेस्ला इंस्ट्रूमेंट. अगर आप जान सकते हैं कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट कहाँ पे हुआ, जो कि जैक किल्बे while working at Tesla's instrument.
TI। सो यूजुअली आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो तो फिर टेस्ला इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है ना, आपको बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है, जो कि हम जानते हैं फर्स्ट IC डेवलप्ड बाय होम, जैक किल्बे इन द ईयर 1958 इन टेस्ला's इंस्ट्रूमेंट। टुडे इंटेल कोर i7 एक्सट्रीम, जो कि इंटेल कोर i7 एक्सट्रीम के माध्यम से वो सिंगल IC इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें मेरा लैपटॉप में यूज हो चुका है। ठीक है, मेरा है इंटेल सेंचुरियन V Pro 2 जो कि इनसाइड इनबिल्ट है। तो उसी प्रकार वो होता है, या फिर उसी प्रकार इन्वेंशन का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, तो इधर आपको पिक्चर में देख सकते हैं कि IC का इन्वेंशन कौन किया है और इसका नाम क्या है। इसका नाम है किल्बे, जो कि इन्वेंशन ऑफ IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसीलिए दिया गया है कि जो कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट ब्लैक कलर का रहता है, उसमें छोटा छोटा ट्रांजिस्टर का मीन्स इम्प्लीमेंटेशन हुआ। सो उस इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह में अंडरलाइन या फिर ब्लॉक लेटर्स में आपको दिया गया है कि 1957 में ई मॉरी, आपको मॉर्ली या फिर मोरी लॉ आप भी पढ़ेंगे कि प्रिडिक्टिंग दैट द ट्रांजिस्टर काउंट इन द IC चिप वुड डबल एवरी 2 ईयर। मीन्स एवरी 2 इयर्स में ट्रांजिस्टर का काउंट क्या है, बढ़ते जाएगा। जो कि जब क्यों बढ़ते जाएगा, यूजुअली जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं या फिर जब हम हायर क्लासेस में या हमारा एजुकेशन करते हैं तो फिर क्या होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारा इतना बुक जो कि 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट, 5th क्लास में जब आएंगे हमारा 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट, जब हम 12th क्लास में आएंगे हमारे 4 ही सब्जेक्ट में मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट में पार्ट्स होने वाला है या फिर पार्ट्स हो चुका है, मीन्स एक बंडल बुक्स। So this is how your education system is. So in the similar fashion, for IC development, we should have to have sufficient information about the transistor implementation. That's how IC being placed. So यही बोला है कि ट्रांजिस्टर इंक्रीज होने वाला है क्योंकि कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड क्वांटिटी के अनुसार। So उसके बाद इसमें यही दिया कि मीन्स उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। वही एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि टेस्ला's इंस्ट्रूमेंट भी माना जाता है, सिलिकॉन वैली में सिचुएटेड है जो कि USA में है। वो सारा क्या करता है, सेमीकंडक्टर का इनबिल्ट कैपेबिलिटी या फिर इनबिल्ट इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ यूजुअली। So this is how the semiconductor material has been used based on different strategies, based on different techniques. So then after we'll be discussing in detail about that. So if you discuss about 2.2, that is semiconductor material, germanium arsenic and gallium arsenic. So if you use that, if you read that, here you can have specific good understanding that, which I have already said to you, that the semiconductor is in between insulator and conductor, conductor and insulator. That's the reason why we name it as semiconductor, right? तो उस सभी से मिलाकर, उस सभी का इंफॉर्मेशन मिलाकर आपको ये समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेमीकंडक्टर। The meaning of electronics is similar to semiconductor. Why it has been used? Because you are dealing with different transistor circuits. You will be dealing with different gadgets which has been designed, which has been installed in PC. Okay, that's the reason why it is in a high quantity with a less budgetary. At a less budget, you will be having n number of information. That's the reason why you are studying electronics. So then after, electronic semiconductor usually divided into 2 classes.
जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, वो क्या होता है, 2 क्लासेस में डिवाइड हुआ। वो 2 क्लासेस क्या क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल, आपको सिंगल क्रिस्टल बोलते ही यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंगल क्रिस्टल। सिंगल एंड क्रिस्टल, single means it has only one crystal structure or one bonding structure, इसीलिए बोला गया है कि वो सिंगल क्रिस्टल। ओके, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। देन आफ्टर कंपाउंड। ओके, कंपाउंड क्रिस्टल क्या बोलते हैं, उसका डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है आपको इसमें दिया गया है। सो सिंगल क्रिस्टल में क्या क्या है, सिंगल क्रिस्टल में यही है कि सेमीकंडक्टर लाइक जर्मानियम, आर्सेनिक, वो सारा क्या होता है, सिंगल क्रिस्टल में जाता है। उसके बाद कंपाउंड क्रिस्टल में क्या होता है, स्कैंडियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, देन आफ्टर गैलियम आर्सेनाइड, ओके, देन आफ्टर गैलियम नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनिक नाइट्राइड फॉस्फाइड, वो सारा क्या होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में जाता है। सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल में वो डिफरेंट हुआ है या फिर डिफरेंशिएशन हुआ है उसमें। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, द 3 सेमीकंडक्टर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी डिवाइस होता है उसमें 3 ही सेमीकंडक्टर्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या फिर यूज हुआ है। सो उस 3 इम्प्लीमेंटेशन या फिर यूज केस में हुआ है वो क्या, गैलियम, उस जर्मानियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड। ओके, ये तीनों का तीनों कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, तो जब ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज हुआ तो फिर इम्प्लीमेंटेशन लाया गया तो फिर कुछ फैक्टर्स देख के ही लाया गया होगा ना। अगर इसमें आप पिक्चर भी देख सकते हो कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट फेज ऑसिलेशन इन्वेंटेड बाय जैक एस किल्बी, सो जो कि टेस्लास इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलप जो कि किया गया है। ठीक है, यही है फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट। ठीक है, फर्स्ट फेज आईसी डेवलपमेंट। तो अगर इसमें आप बोल्ड लेटर में ही देख सकते हो। ठीक है, सो जर्मानियम है सेंसिटिव टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो यूजुअली सिलिकॉन एंड जर्मानियम जो कि यूज होता है, इसमें से कौन सा ज्यादा यूज होगा, कौन सा लेस यूज होगा। जैसे कि हम जानते हैं सिलिकॉन विच इज मोस्टली प्रेफरेबल। ठीक है, सिलिकॉन को ही हम मोस्ट प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि जर्मानियम कुछ ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। यूजुअली वी प्रिफर for silicon only rather than germanium because silicon is available in the most prospective manner. So silicon is usually helpful in developing those circuits. So here we might be having the bold letter that 1954 the first silicon transistor was introduced and silicon quietly became the semiconductor material of choice, not only in silicon less temperature sensitive, but it one of the most abundant material in the earth. So one of the most abundant material in the earth जो कि माना जाता है, जो कि है सिलिकॉन, जो कि कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी कम या फिर ज्यादा टेम्परेचर हो, उसका सस्टेनेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि द फर्स्ट गैलियम आर्सेनाइड टेम्परेचर और द गैलियम आर्सेनाइड ट्रांजिस्टर early in 1970, the new transistor speed of the operation up to the leave of times of silicon. So silicon जब हुआ था पहले, उसके बाद आया था कौन, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, जो कि हाई लेवल प्योरिटी उसको चाहिए एंड मोर एक्सपेंसिव टू डिजाइन एंड हैड लिटिल डिजाइन सपोर्ट इन वेरी एज स्टेज। सो इसको क्या होता है, सिलिकॉन का गैलियम आर्सेनाइड का हाई एक्सपेंसिव मटेरियल है तो इसीलिए वो यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसका डेवलपमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ही माना जाता है। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हो रहा था सिलिकॉन, जर्मानियम एंड गैलियम आर्सेनाइड का। ठीक है,
तो आपको समझ आ चुका होगा कि वेरी लेस कॉस्ट में हमको सारा कुछ होना है। जैसे कि हम जानते हैं अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाजार में जाते हैं तो हमको क्या चाहिए, 10 रुपए में सब कुछ चाहिए, जो कि हम बार्गेनिंग करते हैं डिफरेंट शॉप में। शॉपकीपर वाला मेरे को वो 10 रुपए में दे दो ना यार। जस्ट यू आर जस्ट बार्गेनिंग लाइक एनीथिंग दैट फॉर a very less cost you should have to get many products. Means the very less cost you can say that you need to have many things. So in the similar fashion, we also in the electronic city also, or the city where electrons live, they also need very proficient quality material at a very less cost. In the similar fashion, you might be getting here that वैसा हमको चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें आप देख सकते हैं इंटेल i7, ठीक है, इंटेल i7 कोड जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन किया गया है सेमीकंडक्टर डिवाइस का, ठीक है। तो फिर उस इम्प्लीमेंटेशन से हमको बहुत ही ज्यादा फायदा हो चुका है। जैसे कि हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, ठीक है, वो सारा हमको उसी प्रकार या फिर उससे ही मिला है। लेकिन अगर इसमें यही दिया गया कि जर्मानियम आर्सेनिक, जो कि Ga मीन्स गैलियम आर्सेनाइड जो भी है, गैलियम आर्सेनाइड डिवाइस का प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन ड्यू टू कॉस्ट अवेलेबिलिटी इट हैज बीन मिनिमाइज्ड। उसका प्रोसेसिंग भी हो रहा है, लेकिन उससे हाई कॉस्ट की वजह से उसका उतना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर इस वीडियो में जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल, ठीक है। सो इंट्रिंसिक मटेरियल, एक्सट्रिंसिक मटेरियल वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों पढ़ना है। यूजुअली कोवलेंट बॉन्डिंग इसीलिए पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक का मैनेजमेंट एक कंपाउंड में कैसे हो रहा है, कैसे दौड़ रहा है, वो ही हम इस वीडियो में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो कि है या फिर बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, गैलियम सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, जर्मानियम सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर द सेमीकंडक्टर ऑफ choice or the electronic industry of requirement some understanding of the atomic structure of each and how the atoms are been bound together to form a crystalline structure। एक जो कि मैं पहले ही बोल चुका था कि उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक का मैनेजमेंट उसमें कैसे हो रहा है, वही हम इस वीडियो में देखेंगे या फिर पढ़ेंगे। कि इसमें जर्मानी एक है सिलिकॉन, एक है जर्मानियम, उसका आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग कैसे हो रहा है। तीनों का या फिर दोनों का दोनों ही क्या है या फिर वैलेंसी क्या है उसका 4 है, ठीक है। 4 मीन्स ईच एंड एवरी सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज वैलेंसी 4। क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यूजुअली वैलेंसी सेल 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली, ठीक है, जो कि न्यूक्ली पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, आप जान सकते हैं, ठीक है। वो क्या फॉर्म करता है, एक लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलते। सेल, एक सेल से दूसरा सेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर देखें उस थ्योरी आप 12th क्लास में ही पढ़ाई कर चुके हो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन खाली दूंगा कि वैलेंसी 4 होता है हर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ठीक है। तो बोर्स मॉडल आप पढ़ सकते हैं, बोर्स मॉडल फॉर द 3 मटेरियल इज प्रोवाइडेड, ठीक है। एक क्या कौन सा मॉडल है, बोर्स मॉडल, जो कि एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया है बोर, वो उससे ही ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। या सो जो भी है आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एन आटम इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट में रहता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं गैलियम में कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है,
3 है तो फिर वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? 4 होने पर ही उसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर 3 होगा तो फिर उसको क्या बोलते हैं? अगर 5 होगा, जैसे कि हम गैलियम में 3 है, आर्सेनिक में कितना है? 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर देखे, अगर 4 आटम या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रह गया, उसको क्या बोलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में रह गया, उसको हम क्या बोलेंगे? वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स, 3 electrons and 4 electrons and 5 electrons, पेंटावेलेंट, टेट्रावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट किसको बोलते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड टेट्रावेलेंट। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर रह गया वैलेंसी सेल में, उसको हम क्या बोल के पुकारेंगे? उसको हम टेट्रावेलेंट बोल के पुकारेंगे। ठीक है, इट इज टेट्रावेलेंट। अगर 3 रह गया उसको ट्राइवेलेंट, अगर 5 रह गया उसको क्या बोलेंगे हम? पेंटावेलेंट। द टर्म वैलेंसी यूज्ड टू इंडिकेट द पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल required to remove one electron from the atomic structure is significantly lower than the required of any other electron in the structure. इस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं अंडरलाइन भी किया हूं। क्यों किया हूं? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल है जिसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का पासेस करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से आयोनाइजेशन होता है, मींस बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ता है एक एटम में, और बढ़ने के कारण क्या होता है? ट्रांसफर होने लगता है। क्या फाइल्स? नहीं यार, वैलेंसी मींस आउटर मोस्ट वैलेंसी का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जंप करने या फिर ट्रांसफर करने लगता है उसको। उसीलिए हम इस टर्म का यूज किए हैं जो कि है वैलेंसी। ठीक है, रिमूव करने के लिए। ठीक है, जब होगा ना, जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत पासेज होगा तब वो रन करेगा, उस रन करने के बाद दौड़ेगा, दौड़े के बाद क्या होगा? वो रिमूव होगा। सो उसीलिए हम बोलते हैं इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी को हम दूसरे नाम भी है, वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो आ सकता है मे बी इन योर गेट एग्जामिनेशन एमसीक्यू में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से आ सकता है। वो भी आपको नोट रहना चाहिए या फिर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है सर, आपने तो हमको बोल दिया कि जब वैलेंसी का मतलब जब एक एनर्जी ट्रांसफर जब होगा एक एटॉमिक में, वो क्या उत्साहित होने लगेगा और रिमूव होने लगेगा। तो उस प्रकार हमको कैसे एक्सप्लेनेशन होगा कि वो ऐसा जंप हो रहा है? तो इसीलिए आपके सामने मैं लाया, क्या लाया हूँ? चॉकलेट बिस्किट वो नहीं यार, एक कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग कैसे होता है, जंप कैसे होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक एटम से एक और एक एटम। आपको पहले ही वीडियो में या फिर पहले कुछ रिवाइंड करके देख सकते हो कि सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स रहता है, जो कि मैं बोल चुका था, सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन जर्मानियम है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में बोला था मैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट। तो इसमें खाली सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन का एक ही दाना या फिर एक ही एटम दूसरे एटम से जब मिलता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। किसका होता है म्यूचुअल शेयरिंग? किसका होता है म्यूचुअल शेयरिंग? और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का होता है। जब वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल गेन करता है ना, इसीलिए उसका म्यूचुअल शेयरिंग होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। आपको अंडरलाइन करके या फिर डिस्प्ले करके भी मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है ना। सो उसके बाद आप इधर देख सकते हो, द बॉन्डिंग ऑफ एटम स्ट्रेंथेन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दूसरा का बॉन्ड
कैसे जोड़ेगा बहुत अच्छी तरह, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब करेगा ना, उस समय उसका क्या होगा, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। इसीलिए आपको गैलियम आर्सेनाइड का भी एक एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे गैलियम एंड आर्सेनाइड का कैसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरह बन चुका है। ठीक है, इस बन चुका है ना इधर गैलियम आर्सेनाइड का बॉन्डिंग, सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम से बना है या फिर वैलेंसी से बना है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट का टॉपिक इसमें दिया गया है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से क्या होता है, बहुत स्ट्रांग बनता है। जैसे कि हम जानते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम external nature causes to break the covalent bond and reach the free state। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जब एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, वो क्या होना चाहता है, फ्री होना चाहता है। तो फ्री होना चाहता है किससे, बॉन्डिंग से, मीन्स वो बॉन्डिंग को ब्रेक कर फ्री होना चाहता है। द टर्म फ्री अप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द fixed lattice structure and is very sensitive to any applied electric field established by voltage source or difference in potential। आपको ये भी समझ आ गया कि फ्री, द टर्म फ्री कहाँ पे अप्लाई हुआ है, कहाँ पे अप्लाई हुआ है, एक लैटिस स्ट्रक्चर इज वेरी सेंसिटिव टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सच एज एस्टैब्लिश्ड बाय वोल्टेज। मीन्स क्या बोल सकता हूँ, द टर्म फ्री इज अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लैटिस फ्री और फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर। फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर से एक इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कितना एनर्जी उनको चाहिए, एट ए स्पेसिफाइड रूम टेम्परेचर ऑफ 1.5 into 10⁻10 फ्री कैरियर्स इन 1 सेंटीमीटर फॉर एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन मटेरियल। सिर्फ ये इंट्रिंसिक सिलिकॉन मटेरियल को ही क्वांटिफाई कर रहा है कि इतना टेम्परेचर में, जैसे कि 1.5 10⁻10 टेम्परेचर में वो क्या होने लगेगा, एक्साइटेड स्टेट में चलेगा या फिर फ्री स्टेट में चलेगा, वही इसमें डिस्प्ले किया गया है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो दिस इज हाउ द बॉन्डिंग इज बीइंग, दिस इज हाउ द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इज बीइंग, ओके, इन डिफरेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में कैसे बॉन्डिंग का हो रहा है वही इसमें डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, so let me continue with the session. This is the term intrinsic. So intrinsic के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिर क्या होता है, intrinsic semiconductors are those semiconductors usually refined for reducing the impurity। ठीक है, वो क्या करता है, impurity को reduce करने के लिए। तो फिर अगर देखें इंट्रेंसिक कैरियर, यूजुअली जैसे कि हमारा सिलिकॉन, जर्मानियम एंड गैलियम आर्सेनाइड है, इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर कैरियर किसका ज्यादा है और किसका कम है पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर? पहला है गैलियम आर्सेनाइड जिसका है 1.7 into 10⁻6, वायर जर्मेनियम का बहुत ज्यादा है जो कि 1.5 into 10⁻13। ठीक है, ये क्या होता है, एनआई के नियमित सिंबल है किसका, इंट्रिंसिक कैरियर का। इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा है और किसका कम है, और गैलियम आर्सेनाइड एंड जर्मानियम। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रिंसिक कैरियर क्या है और इंट्रिंसिक कैरियर का मोबिलिटी, रिफाइनेबिलिटी या एज वेल एज किसका पर सेंटीमीटर क्यूबिक किसका ज्यादा और किसका कम है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो उससे पहले मैं हमको ये भी जानना है कि रिलेटिव मोबिलिटी क्या है, म्यू एन। यूजुअली रिलेटिव मोबिलिटी इज नोन एज म्यू एन, इसका फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें रिलेटिव मोबिलिटी क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का सराउंडिंग होता है, उसका वैलेंसी होता है, जैसे कि मूव होते हैं, उस मूविंग को और उस ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को हम ही मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो कि 12th क्लास फिजिक्स में या फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ाई कर चुके होगे, कूलम्ब्स लॉ। जैसे कि हम जानते हैं रिलेटिव मोबिलिटी क्या होता है, फिजिक्स में आप पढ़ाई किए हो, मेरे को पता है। रिलेटिव मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक रोटेशन ऑफ